professors, and one and all present here. Today, I, Shakti Pandey, And I'm Vidhi Chauhan. welcome you to the Faculty Development Program on the topic Challenging the Status Quo versus Exemplary Studies. With this, now I invite Professor Dr. Kumpum Ray, who's a senior Cambridge Honours graduate from D.D. Sri Ram College, Delhi University. She was awarded the Best Thesis Award for a PhD degree on Henry Louis Vivian the first Anglo-Indian Nationalist Forum. She's in education and court activists. With 46 years of experience in teaching, she's the founding director at Amreli University, Uttar Pradesh. Is been beneath our wings, our guiding light. The existence of Amity School of Languages is because of her efforts, dedication, and love. And as a team, we continue to grow under her guidance. I now request ma'am to greet the dignitaries and audience. A very good afternoon to everybody. My am I audible? Yes, ma'am. So a very good afternoon to all the participants, to the expert speakers. We are really delighted to have you with us, Dr. Sarkar, and also our second participant, expert speaker. I'm so thankful to my students for having coordinated this, and Mrs. Shraddha Srivastava for working on the details to fructify this faculty development program. Our endeavor is to hear voices in literature and narratives which have not been brought to the forefront till now. And I also welcome Jay Lakshmi Rajwaran. It's our great honor and privilege to have you, ma'am. And I'm sure our participants will be learning a lot after hearing from you. So our endeavor is to bring to focus those narratives which have taken a back seat and somehow not found the courage to be aired. With NEP 2020 and rightly the stress going to local cultures, local writings, and global outlooks with the local cultures is what we think we will be able to deliberate on. Also, this faculty development program and the voices we hear, which were not loud voices in the past, will lead to new areas of research. So thank you, our guest speakers for today. We are really very delighted to have you on board, and we are very obliged to you for having spent your precious time for our participants and share your voices with us. Thank you, sir. Thank you, ma'am. And thank you all the participants, and a very big thank you to my dear students. Thank you. चित्ते प्रसन्ने भुवन्नं प्रश्नं चित्ते विष्णे भुवन्नं विष्णु. It means if the mind is happy, the entire world seems happy. If the mind is despondent, the entire world seems despondent. With this, I invite Dr. Rajiv Sarkar. He is an assistant professor in Department of Sanskrit, Faculty of Arts in Banaras Hindu University. His expertise are in the fields of Sanskrit literature, Urdu and literature, yogic practices, and Persian language.
सर हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी, तो प्रारंभ किया जाए। Yes, sir. हाँ जी Yes. ठीक, धन्यवाद। शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि यतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्च्यादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति। सर्वप्रथम मैं MIT विश्वविद्यालय लखनऊ परिसर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं अपनी बात आप सभी जो है प्रतिभागियों के समक्ष रख सकूं। समय जटिल है और आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। विगत वर्ष संभवतः इसी समय भी मेरा एक व्याख्यान हुआ था और वह भी ऑनलाइन माध्यम से, और ऑनलाइन माध्यम से हम एक अल्प समय श्रम में जो है एक दूसरे से साक्षात्कार कर पाते हैं और अपनी विचाराभिव्यक्ति कर पाते हैं और इसकी प्रस्तुति जो होती है बड़ी व्यापक हो जाती है। तो मेरा जो विषय है कि संस्कृत साहित्य के अश्रुत जो स्वर रहे हैं नारी स्वर के रूप में, विशेष रूप से कि जो महिलाओं का अवदान है, स्त्रियों का अवदान है, वो बहुत कम कहा जाता है। वैसे भी मुख्यधारा में स्त्रियों को आने में बहुत ही समय लगा और विशेष रूप से संस्कृत जिसके साथ प्रायः एक विचार ये भी जुड़ा हुआ है कि ये पुरातन पंथियों की भाषा है और बड़े संकीर्ण लोगों की भाषा है, बड़े जटिल लोगों की भाषा है, या इस बात को हम हटा भी दें तो प्रायः लोगों की धारणा है कि ब्राह्मणों की भाषा है या पंडितों की भाषा है, पूजा पाठ की भाषा है। लेकिन ये बहुत अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य क्या कहें, अपूर्ण सत्य है। हम इससे परिचित नहीं हो पाते हैं, उसका कारण हमारी अल्पज्ञता भी है और समाज की कुछ जो है ऐसी धारणा भी रही कि हमने केवल इसको एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष और एक कार्य विशेष की भाषा के रूप में वो कर लिया, जबकि इसका साहित्य इतना व्यापक है। जिस दर्शन में, जिस भाषा में कामसूत्र से लेकर के अर्थशास्त्र तक के ग्रंथ रचे गए हों, वह विषय इतना संकीर्ण कैसे हो सकता है, संकुचित कैसे हो सकता है, चार्वाक जैसा दर्शन जहां लिखा गया। तो आज मैं महिलाओं के अवदान को लेकर के, संस्कृत में महिलाओं के अवदान को लेकर के जो है एक चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम हमारे समक्ष जो है वैदिक चिंतन आता है, वेद, जिसको हम वेद कहते हैं। तो वेद हमारे यहाँ बहुत ही प्रतिष्ठित ग्रंथ रहे हैं। वेदों में जो है हम ये प्रायः सुनते हैं कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा, धार्मिक रूढ़िग्रस्त लोगों ने, स्त्रियां वेद ना पढ़ें। एक समय ऐसा रहा कि महादेवी वर्मा ने वेद पढ़ने का आग्रह किया तो उन्हें मना भी कर दिया गया, जिस पर तत्कालीन सरकार ने 2 आचार्यों को, 2 प्रोफेसरों को निलंबित भी किया। और वो अकेली छात्रा थी जो वेद पढ़ती थी। पूरी कक्षा छात्रों से भरी रहती थी और पर्दे में रह करके अकेली पढ़ने वाली छात्रा महादेवी वर्मा रही। हमारे यहाँ कला श्रीवास्तवा जी नहीं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब उन्होंने वेद पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो आचार्यों ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि आप स्त्री हैं और दूसरे गैर ब्राह्मण, हम आपको वेद कैसे पढ़ा सकते हैं। फिर महामना मालवीय जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हस्तक्षेप से इस प्रकरण का निराकरण हुआ और उन्होंने वेद पढ़ा। आदिकाल से ही शक्ति रूपा नारी के देवी, घरणी, गृहिणी, पत्नी, जननी, भगिनी, प्रेयसी, सखी, पुत्री आदि अनेक रूपों की चर्चा हमारे समक्ष होती है। संपूर्ण समाज, समग्र परिवार एवं मानव जीवन के निर्माण में स्त्रियों ने व्यापक स्तर पर अवदान दिया है। चिंतन के धरातल पर भी नारियों के अवदान का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि हमारे वेदों में भी जहां एक बड़ी संख्या ऋषियों की प्राप्त होती है, वहां 21 नारियों का उल्लेख होता है कि जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया, जिसको आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि उन्होंने मंत्रों को रचा। उनके नाम क्या क्या हैं, तनिक हम देख लें। एक ग्रंथ है बृहद देवता। बृहद देवता ग्रंथ में उन 21 स्त्रियों की चर्चा है। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपालोपनिषद, ब्रह्मजाया, जुहुर्नाम, अगस्तस्य स्वसादिति, इंद्राणी, चेन्द्रमाता च, सरमा, रोमशा उर्वशी, लोपामुद्रा च, नद्यश्च, यमी नारी च, शश्वती, श्रीर्लाक्षा, सार्पराज्ञी, वाक्, श्रद्धा, मेधा च, दक्षिणा, रात्रि, सूर्या च, सावित्री, ब्रह्मवादिन्य ईरिता। अर्थात ये 21 स्त्रियां हैं जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया। मंत्रों का, हम लोग उसको मंत्रों का दर्शन कहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि वेद मनुष्य की कृति नहीं है, अपौरुषेय है।
वो परमात्मा की वाणी है, भगवत वाणी है। लेकिन सामान्य व्यक्ति तो यही कहेगा कि नहीं नहीं, ये तो रचना है। तो हम ये आप कह सकती हैं कि 21 ऐसी स्त्रियां रहीं जिनके द्वारा रचे गए या देखे गए मंत्र जो है प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है हमारे यहाँ, बहुत ही प्राचीन वैदिक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें अश्वमेध यज्ञ की चर्चा प्राप्त होती है। तो शतपथ ब्राह्मण का एक वचन है, वैदिक मंत्र है, यावात जायम न विन्दते असर्वो ही तावात भवति। अर्थात जब तक मनुष्य, मनुष्य यानी पुरुष, स्त्री को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात विवाह नहीं कर लेता है, तब तक वह अपूर्ण होता है। सोचिए कि मानव जीवन की, पुरुष जीवन की पूर्णता जो है स्त्री के वर्ण करने में है, बिना स्त्रियों के उसकी पूर्णता नहीं होती है। महाभारत में भी कहा गया है, महाभारत का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, न गृहम गृहिम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते गृहं च गृहिणीहीनम अरण्य सदृशम मतम, कि गृहम गृहिम इत्याहु, घर घर नहीं होता बल्कि गृहिणी ही घर होती है। गृहिणी के बिना वो घर नहीं, बल्कि मैं उसे अरण्य अर्थात जंगल कहता। और चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम जो है बड़ा प्रसिद्ध है। और न केवल बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में ही, बल्कि जो है प्रशासनिक एवं न्यायिक क्षेत्रों में भी स्त्रियों की बड़ी महती भूमिका रही है। आप देखें कि वधू को विवाह सूक्त, ऋग्वेद में एक सूक्त प्राप्त होता है जिसको विवाह सूक्त कहते हैं। तो विवाह सूक्त में कहा गया है कि विवाह सूक्त को आप पढ़ें, उसमें स्थान स्थान पर जो है स्त्रियों की महिमा का गान किया गया है कि नारी जब तक नहीं होती तब तक पुरुष के यह कार्य सिद्ध नहीं होते, नारी को प्राप्त करके ही पुरुष पूर्ण होता है। ये ऋग्वेद का बहुत ही प्रसिद्ध सूक्त है, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इंद्राणी के द्वारा, इंद्राणी इंद्र की पत्नी के द्वारा अनेक युद्धों को किए जाने की वर्णन जो है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामादि वेद में प्राप्त होते हैं। तो आप ये आपके सामने ये तथ्य प्राप्त होता है कि सामाजिक रूप में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक और युद्ध क्षेत्र में ही, सामरिक रूप से भी नारी एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आती है। एक वाक सूक्त हमारे यहाँ प्राप्त होता है जिसकी दृष्टा जो है अम्भृण ऋषि की पुत्री है। अम्भृण ऋषि की पुत्री है वाक, वागाम्भृणी ऋषि। ये संसार का, यदि इसको आप सबसे प्राचीन नारीस्वर कहें, अगर कविता के रूप में सबसे प्राचीन नारीस्वर, तो आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि वेद सबसे प्राचीन दस्तावेज है जो हमारे सामने है। उसमें कुल 8 मंत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें एक नारी उद्घोष कर रही है, वाक नाम की ऋषिका जो स्त्री ऋषि है वो उद्घोष कर रही है, अहम रुद्रेभिर वसुभिश्चरामि, मैं रुद्रों और वसुओं को चराती हूँ, अहम आदित्ययुत विश्वदेवई, मैं आदित्य अर्थात सूर्य और विश्व देवता को भी जो है विचरण कराती हूँ, अहम मित्रा वरुणोभा विभर्मी, मैं मित्र और वरुण देवता को धारण करती हूँ, अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनोभा, मैं ही इंद्र को और अग्नि को और अश्वनी को भी, दोनों अश्वनी कुमारों को धारण करती हूँ। अर्थात एक नारी उच्च स्वर से उद्घोष कर रही है कि उसकी क्या महत्ता है कि वह जो है पुरुष प्रजातीय देवताओं का भी जो है संचालन करती है। इसके आगे 7 मंत्रों में और जगह वो, मैं धनुष खींचती हूँ, मैं ही असुरों का संहार करती हूँ, इस प्रकार से जो है हमारे सामने तथ्य प्राप्त होते। 18 पुराणों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, अष्टादश पुराण, अष्टादश कहते हैं संस्कृत में 18 पुराण जो बड़े प्रसिद्ध हैं। उनमें एक देवी भागवत पुराण भी है, कुछ लोग उसको मुख्य पुराण के रूप में मानते हैं। शाक्त संप्रदाय के जो लोग हैं, यानी शक्ति की पूजा करने वाले, वो कहते हैं उसमें देवी के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा की गई है। और आप विचार करें कि मैं 10 मिनट के बाद अपनी मुख्य भूमिका में आ रहा हूं। कहा गया है कि भ्रूण हत्या करने वाले, कन्या भ्रूण हत्या करने वाले कुंभी पाक नरक के भागीदार होते हैं। अर्थात इतने प्राचीन पुराण में कन्या भ्रूण हत्या करने के विषय में हमारे यहाँ कितनी कठोर बात कही गई है कि कन्या भ्रूण की जो हत्या करते हैं वो लोग जो है कुंभी पाक नाम का एक नरक प्राप्त करते हैं, क्योंकि 24 प्रकार के नरकों की चर्चा पुराणों में प्राप्त। दुर्गा सप्तशती एक ग्रंथ है, हम में से प्रत्येक जो हिंदू धर्म में विश्वास करते हैं, हिंदू सनातन धर्म में नवरात्रि के अवसर पर पाठ करते हैं, वहां एक बड़ा सुंदर मंत्र प्राप्त होता है जहां कहा गया विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। 11वां अध्याय जो दुर्गा सप्तशती का है उसके 6वें मंत्र में कहा गया कि जितनी संसार की विद्याएं हैं वो देवी से उत्पन्न हैं, और स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु,
जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब जो है क्या कहते हैं, देवी का ही स्वरूप है। एक स्त्री का स्वर है, जब महिषासुर का वध करती हैं देवी, वो कहती हैं गर्ज गर्ज महामूढ़ मधु यावत पिबाम्य हम मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्ति आशु देवता। हे महिषासुर तुम गर्जना कर लो, जब मैं तुम्हारा वध करूंगी तो सारे देवता जो है गर्जना करेंगे। वर चयन की स्वतंत्रता, आज सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम स्त्री को शिक्षित करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन जब अपनी इच्छा से किसी पुरुष का चयन करना चाहती है, वर का चयन करना चाहती है, उसी समय हमारी भ्रुकुटी तन जाती है और हम बड़े उद्विग्न हो जाते हैं कि स्त्री कैसे अपने लिए अपने पुरुष वर को चुन सकती है। लेकिन देखिए कि दुर्गा वहां कह रही है, यो माम जयति संग्रामे, जो मुझे संग्राम में विजित करेगा, जीतेगा, यो में दर्पम व्यपोहति, जो मेरे जो है दर्प का नाश करेगा, यो में प्रतिबलो लोके, जो मेरे समतुल्य होगा, जो मेरे बराबर होगा, समय भरता भविष्यति, वही मेरा पति होगा। मनुस्मृति का एक श्लोक आप लोगों ने बहुत सुना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फला क्रिया। जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां इनका सम्मान नहीं होता है वहां पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। तो एक श्लोक है, इस प्रकार से 7-8 श्लोक जो है आचार्य मनु कहते हैं। अच्छा, स्त्रियां प्राचीन काल में शिक्षा देती थी या नहीं देती थी, इस पर जो है बड़ा विमर्श हुआ। हमारे यहाँ एक शब्द है आचार्या संस्कृत व्याकरण में, और एक है आचार्यानी, यानी आचार्यानी उसे कहेंगे जो किसी आचार्य की पत्नी है, सिर्फ पत्नी होने के कारण उसे गौरव मिला है। और दूसरा आचार्य उसे कहेंगे जो स्वयं पढ़ाती हो, वही आचार्य। इसका तात्पर्य यह है कि यदि शब्द हमारे यहाँ है तो व्यवहार में भी रहा होगा निश्चित रूप से कि स्त्रियां पढ़ाती रही होंगी और शिक्षिका रही होंगी। इसलिए ये कहना कि स्त्रियां केवल आज ही पढ़ा रही हैं, प्राचीन काल में वो शिक्षिका नहीं होती थी, ये बात बिल्कुल भ्रांति है। क्योंकि ये दो शब्दों से आप समझ सकते हैं, आचार्य, आचार्यानी माने किसी टीचर की पत्नी, किसी शिक्षक की पत्नी, और आचार्य माने जो स्वयं शिक्षिका हो। तो ये शब्द जो है हमारे यहाँ आता है, और आप इस पर वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो है स्त्रियों की हमारे यहाँ एक महनीयता रही। अब आते हैं हम साहित्य के क्षेत्र में यदि बात करें, तो साहित्य के क्षेत्र में ये तो सत्य है कि मैंने वैदिक काल से प्रारंभ किया कि 21 ऐसी स्त्रियां हैं जिनके द्वारा द्रष्टव्य जो है मंत्र प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी स्त्रियां रहीं, बहुत कम संख्या है, लेकिन जो भी रही सशक्त रूप में रही संस्कृत साहित्य के अंतर्गत। एक नाम इसमें सबसे पहले दक्षिण भारत से हमारे पास आता है, जिनका नाम है विज्जिका। ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा में विज्जिका कहते हैं, विजयांका। और संस्कृत साहित्य में इनका नाम खूब आता है कि ये विजयांका कौन है। तो दक्षिण भारत में इनका कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता है, किसी प्रकार की कृति हमारे सामने नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं इनके जो है कुछ कुछ श्लोक, कुछ कुछ पद्य इनके जो है फुटकर रूप में, प्रकीर्ण रूप में, बिखरे हुए रूप में हमें मिलते हैं। तो और विज्जिका एक ऐसी कवियत्री है जो उस समय कवि हुए थे दंडी, महाकवि दंडी। उन्होंने दश कुमार चरितम और काव्यादर्श नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है संस्कृत काव्य शास्त्र का। तो वो महाकवि दंडी जैसे पुरुष कवि को डांट लगाती है, और किस लिए डांट लगाती हैं उस पर आप विचार करें। बड़ा हास्यकर विषय है कि वो सरस्वती की वंदना करते हैं। तो हमारे यहाँ सरस्वती जी के लिए कहा गया सरस्वती जी श्वेता है, सरस्वती का एक नाम श्वेता, यानी पूर्ण रूप से जो सफेद है। तो और कैसे, सफेद कमल के समान श्वेत है। तो दंडी कहते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती, पूर्ण रूप से जो शुक्ल है, सफेद है, ऐसी सरस्वती की मैं वंदना करती हूँ। तो कहती है विज्जिका, नीलोत्पल दल श्यामाम विज्जिकाम माम जानता, मैं नीले कमल के समान सांवले रंग की हूँ और विज्जिकाम माम जानता, मेरा नाम विज्जिका है। वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। ये तो दंडी ने व्यर्थ में ही कह दिया कि सरस्वती सफेद है, क्योंकि वो ये कहती थी, कर्नाटक की रहने वाली ये कवियत्री थी, 7वीं-8वीं शताब्दी के लगभग। कहती है कि सरस्वती व कर्णाटी विजयांका जयत्यसौ यह वैदर्भ गिराम साराम कालिदासादनंतरम, कि सरस्वती तो कर्नाटक की रहने वाली है। कर्नाटक की मतलब वो स्वयं जो है अपने को सरस्वती कहती है, जो कर्नाटक की रहने वाली विज्जिका थी, विजयांका। कहते कि सरस्वती व कर्णाटी, सरस्वती तो कर्नाटक की रहने वाली है, विजयांका जयत्यसौ, इसका नाम विजयांका है। यह वैदर्भ गिराम साराम कालिदासादनंतरम, जो वैदर्भी वाणी के प्रयोग में कालिदास के बाद आती, यानी संस्कृत के सर्वोच्च कवि
कालिदास के बाद यदि किसी का स्थान है तो विज्जिका का है। तो मैं शामली हूँ, सरस्वती मैं हूँ, तो कैसे जो है दंडी ने कह दिया कि सरस्वती श्वेत है, इसलिए विज्जिका एक बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री हुई और उसका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, लेकिन बिखरे हुए कई श्लोक, जैसे कवींद्र वचन समुच्चय में कश्मीर के कवि मम्मट थे, उनके काव्य प्रकाश नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में जो है श्लोक जो है प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक कवयित्री का नाम जो है हमारे सामने आता है, वो भी लगभग जो है आगे पीछे है, 8वीं-9वीं शताब्दी के लगभग। सुभद्रा नाम की कवयित्री है वो, सुभद्रा। विज्जिका के उपरांत सुभद्रा नामक कवयित्री की प्रसिद्धि उतनी तो नहीं है, लेकिन अच्छा इनकी रचनाओं का भी कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वल्लभ देव नाम के कवि हुए, उन्होंने सुभाषितावली नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें 2-4 पद्य 2-4 संस्कृत कविताएं इनकी जो है मिल जाती हैं। और इनका जो है एक राजशेखर नाम के कवि हुए थे, उन्होंने इनकी कविता को बहुत ही प्रसिद्ध कहा। 10वीं शताब्दी के कुछ पहले इनका समय है, बिल्कुल भी जीवनी नहीं मिलती है। एक विषय ये भी चर्चा का हो सकता है कि आखिर क्या कारण है कि ये जो स्त्रियां हो रही हैं इनकी रचनाएं नहीं मिल रही हैं या फुटकर मिल रही हैं, क्या समाज में उनको उचित स्थान नहीं मिला, ये हमारी एक चर्चा का विषय हो सकता है। उसके पश्चात आप एक श्लोक मैं इनका सुनाना चाहूंगा, बहुत सुंदर है। दुग्धम च यत् तदनु तत्कथितं ततोनु माधुर्यमस्य हृत् युन्मथितं च वेगात् गातं पुनर्घृत कृते नवनीत वृत्ति स्नेहो निबंधनमर्थ परंपराणाम। श्लोक का अर्थ बताता हूं। स्नेह एक शब्द होता है, स्नेह शब्द का अर्थ होता है प्रेम, और स्नेह शब्द का अर्थ घी भी होता है संस्कृत और हिंदी में, चिकनापन लिया हुआ घी। तो कहते हैं कि स्नेह ने माने घी ने, एक और स्नेह कहिए तो प्रेम, एक और स्नेह कहिए तो घी ने दूध की कैसी दुर्दशा कर दी। स्नेह के लिए ही दूध गर्म किया जाता है, घी के लिए खूब उसे जो है औंटा जाता है, फिर उसमें खट्टा डालकर उसका मीठापन दूर किया जाता है, फिर बड़े जोर से मथा जाता है, तब घी के लिए इसे मक्खन का रूप धारण करना पड़ता है। बताइए बेचारे दूध पर इतनी आफत क्यों? केवल स्नेह के लिए, घी के लिए, प्रेम के लिए। वास्तव में स्नेह मनुष्य के हजारों दुखों का मूल है। ये बहुत ही सुंदर एक श्लोक कहती है। इसी प्रकार तीसरी एक कवयित्री है, उसका नाम है फल्गु हस्तिनी। उनका नाम भी बहुत नहीं मिलता, लेकिन सुभाषितावली में 2 पद्य इनके उद्धृत किए गए हैं, जो वल्लभ देव की सुभाषितावली है। एक श्लोक इनका भर्तृहरि के नीति शतक में भी मिलता है, दूसरा पद जो है सारंगधर पद्धति में मिलता है। और क्या कहते हैं, बहुत सुंदर पद्य है वो। त्रिनयन जटावल्ली पुष्पम मनोभवकार मुकम ग्रह किशलयम संध्या नारी नितंभ नखक्षतम तिमिर्भिदुरम व्योम्नः श्रृंगम निशा वदन स्मितम प्रतिपदी नवस्येन्दुर्बिंबम सुखोदयम अस्तु वः। तो इस श्लोक से, इस पद्य से, एक कविता से हम अनुमान कर सकते हैं कि फल्गु हस्तिनी बहुत ही उत्कृष्ट प्रतिभा की स्त्री थी, जो कविता लिखने में बहुत दक्ष थी। लेकिन वह भी दुर्भाग्य का विषय है कि इनका जीवन वृत्त और इनकी कृतियां जो है अज्ञात रह गईं, बहुत इनके विषय में प्रकाश नहीं हो सका। इसी प्रकार एक मोरिका नाम की कवयित्री है, उसका भी पद्य जो है सुभाषितावली और सारंगधर पद्धति में मिलता है। और ये स्वयं कहती हैं, सारंगधर पद्धति में धनदेव कहते हैं कि इस कविता रचने में जो जो स्त्रियां विख्यात हुई हैं, उनमें मोरिका जो है बहुत प्रसिद्ध है। क्या कहते हैं, बहुत ही विख्यात है, वो इनकी प्रशंसा प्राप्त होती है। मोरिका के पश्चात जो है एक कवयित्री इंदुलेखा जो है का नाम भी स्त्री कवयित्रियों में आता है। इनका जन्म कब कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं होता है। वल्लभ देव के सुभाषितावली में इंदुलेखा का एक पद्य जो है प्राप्त होता है। एके वार निधौ प्रवेशमपरे लोकांतरा लोकनम केचित पावक योगिताम निज गदु क्षीणे निचंडर्चिषा मिथ्या चैदद साक्षिकम प्रिय सखी प्रत्यक्ष तीव्रातपम मन्नेहम पुनरध्वनीनमच रमणी चेतोधिशेते रवि। कोई कहता है कि सायंकाल में सूर्य समुद्र में समा जाते हैं, किसी की राय है कि सूर्य दूसरे लोक में चले जाते हैं, दूसरा कहता है कि अग्नि में चले जाते हैं। किंतु हे प्यारी सखी, मुझे लगता है ये सारी बातें झूठ है, इन घटनाओं में कोई सच्चाई नहीं है।
जिन स्त्रियों के प्रियतम या पति बाहर चले गए हैं वो अपने वियोग के बाधा से अधिक संतप्त है। मालूम होता है कि सूर्य रात को इतने कोमल चित्त में सोने के लिए प्रवेश करता है जिससे उसमें असह्य गर्मी पैदा हो जाती है। सोचिए कि आप जो है एक वियोगी की दशा का कितना सुंदर इंदुलेखा ने चर्चा किया है। इसी प्रकार एक कवयित्री प्राचीन काल की ही, लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी की, ये यही काल है जब स्त्री कवयित्रियां हमें दृष्टिगोचर हो रही हैं, सुभाषितावली में मिलती है। और एक ही पद्य मिलता है। हम उससे ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन इतना अनुमान कर सकते हैं कि साहित्यिक प्रतिभा की इनमें कमी नहीं थी। हाँ, इनमें साहित्यिक प्रतिभा की कमी बिल्कुल नहीं थी। तो ये प्राचीन काल की बात रही जब हमारे सामने कम से कम 1 दर्जन कवयित्रियों को हम देख रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किसी कवयित्री की कोई रचना पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, केवल कुछ-कुछ जो है श्लोक जो है मिल रहे हैं। अब हम अपने बचे समय में आधुनिक काल की चर्चा भी कर लेते हैं। आधुनिक काल में स्त्री कवयित्रियों में जो सबसे पहला संस्कृत में नाम आता है वो पंडिता क्षमा राव, महाराष्ट्र की, 4 जुलाई 1890 और सामंतवाड़ी जनपद की रहने वाली थी महाराष्ट्र के। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, वो जर्मन के, संस्कृत के, अंग्रेजी के, मराठी इत्यादि भाषाओं के पंडित थे। और आश्चर्य की बात है कि संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्होंने 13 वर्ष की आयु में ही लेखन प्रारंभ कर दिया, पंडिता क्षमा राव ने। आप इनकी प्रतिभा का अनुमान कर सकते हैं इस प्रकार। और आपकी रचनाएं अधिकांश जो है स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के पंडिता क्षमा राव लिखती है। तो जिसमें विशेष रूप से कथा पंचकम, सत्याग्रह गीता, महात्मा गांधी को लेकर के सत्याग्रह गीता, शंकर जीवन व्याख्यानम, मीरा लहरी, उत्तर सत्याग्रह गीता, महाराष्ट्र के संत तुकाराम जी पर तुकाराम चरित, ग्राम ज्योति, समर्थ गुरु रामदास पर रामचरितम, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के ऊपर ज्ञानेश्वर चरितम, स्वराज्य विजयम। और महात्मा गांधी के व्यक्तित्व से बड़ी प्रभावित थी। इनकी रचनाओं पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध भी लगाया था, जिसके कारण इनकी जो पहली रचना थी सत्याग्रह गीता, जो 3 भागों में थी, और आपको आश्चर्य होगा कि भारत से नहीं बल्कि 1932 में पेरिस से छपता है वो संस्कृत ग्रंथ। और इनको आधुनिक संस्कृत साहित्य का, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर जिसे आप कहते हैं, कि प्रथम कवयित्री पंडिता क्षमा राव। इसी प्रकार एक कवयित्री आती हैं सरोज मोहिनी देवी। सरोज मोहिनी देवी की जो है का परिचय तो बहुत नहीं मिलता, आधुनिक काल की ही है। लेकिन एक संस्कृत चंद्रिका नाम की पत्रिका प्रकाशित होती थी, जिसमें इन्होंने क्षण प्रभा, शरद वर्णन, प्रावृट माने प्रकृति को लेकर के, प्रावृट माने वर्षा काल को लेकर के इन्होंने बहुत सुंदर जो है कविताएं लिखी हैं संस्कृत में, आधुनिक संस्कृत में। और ये सभी कविताएं 1894 ईस्वी के अंकों में प्रकाशित हुई हैं, इसलिए आप अनुमान कर सकते हैं कि इनका समय 1894। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा नाम बंगाल से आता है, डॉक्टर रमा चौधरी, जिनके पति थे जतीन्द्र मोहन चौधरी। ये दोनों पति पत्नी संस्कृत कविता और संस्कृत रंगमंच के बहुत विख्यात थे। 8 फरवरी 1911 में कलकत्ते में आपका जन्म हुआ। इनके पिताश्री सुधांशु मोहन बसु प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं पब्लिक सर्विस कमीशन के जो है चेयरमैन थे। और आपकी जानकारी के लिए मैं इसको बताऊं कि डॉक्टर रमा चौधरी प्रथम महिला हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टरेट की। पीएचडी ऑक्सफोर्ड नामक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रथम पीएचडी प्राप्त करने वाली भारतीय महिला यदि कोई थी तो डॉक्टर रमा चौधरी संस्कृत की। और कलकत्ते में एक कॉलेज है लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज, उसकी वर्षों तक आप प्रधानाचार्य रही। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की आचार्य और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जो कलकत्ता ही नहीं भारत की सबसे प्रसिद्ध संस्था है। यदि कोई प्राच्य विद्या के क्षेत्र में या भारतीय इतिहास के क्षेत्र में काम करना चाहे उसे एशियाटिक सोसाइटी जरूर जाना चाहिए, आज भी वो संस्था है। और संस्कृत कॉलेज वहां का, तो वहां की महिला रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन की फेलो थी और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की भी जो है महिला फेलो थी। और इतनी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं कि जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। और ज्यादातर रचनाएं, अधिकांश रचनाएं महापुरुषों पर, स्वतंत्रता आंदोलन को, जैसे शंकराचार्य पर शंकर शंकरम, अभेदानंदम, निवेदिता निवेदितम, सिस्टर निवेदिता पर, युग जीवनम स्वामी रामकृष्ण परमहंस को लेकर, भारताचार्यम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लेकर नाटक है ये सारे, भारत तातम महात्मा गांधी पर, चैतन्य चैतन्यम चैतन्य महाप्रभु पर,
रसमय रासमणि, बंगाल की एक रानी थी रासमणि, जिन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण कराया। प्रसन्न प्रसादम, गणदेवता नाटकम, बंदोपाध्याय जी का गणदेवता जिन्होंने लिखा उन्होंने। अग्निवीणा नाटकम, काजी नजरुल इस्लाम, बंगला के बड़े प्रसिद्ध कवि थे, उन पर लिखा। भारत पथिकम, इस प्रकार कालिदास पर उन्होंने बहुत रचनाएं लिखी। ताराशंकर बंदोपाध्याय जी पर गण नाटक इन्होंने गण नाटकम लिखा। तो ये बंगाल की एक बहुत प्रसिद्ध कवयित्री थी, जो बंगाली नहीं बल्कि बहुत विख्यात हुई यहाँ भी। इसी प्रकार आचार्य कमला रत्नम का नाम आता है, दक्षिण भारत की थी मूलतः, लेकिन इनका जन्म 1914 में इलाहाबाद, जो आजकल प्रयागराज है, वहां पर हुआ था। संस्कृत के अतिरिक्त आप फ्रेंच और जर्मन बहुत प्रसिद्ध विदुषी थी, जर्मन में कविताएं भी लिखती थी। आपके पति जो है पेराला रत्नम जो है भारतीय विदेश सेवा के अफसर थे। आपको संस्कृत के प्रचार का बहुत अवसर मिला। रामजस कॉलेज जो है दिल्ली में, ये प्राचार्य रही और भारतीय संस्कृत की अध्यापिका। इन्होंने बहुत सी रचनाएं कमला रत्नम जी ने की है। संस्कृत प्रतिभा नाम की का पत्रिका निकलती थी, जिसमें इन्होंने अहम नाम की एक कविता लिखी। अहम नाम की जो कविता थी, इसमें नारी की अस्मिता को लेकर के इन्होंने अपने विचार जो सशक्त रूप से प्रकट किए हैं, वो बहुत ही जो है प्रशंसनीय है। यम नचिकेता यम संवादम, विवेकानंद विजयम, विवेकानंद स्मृति, विक्रम विताल नाटिका, ये इनके की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। समय है अभी जी? जी सर। अच्छा, अभी कितना समय है? सर 30 मिनट्स। सर 30 मिनट्स। अच्छा, कितने मिनट? सर 30 मिनट है। 30 मिनट है। हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है। हाँ, इसी क्रम में हमारे सामने एक नाम डॉक्टर भक्ति सुधा मुखोपाध्याय का आता है। भक्ति सुधा मुखोपाध्याय भी एक संस्कृत कवयित्री हैं। इनके विषय में आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि मेरे आज विचार विमर्श का कारण यही है कि हम लोग किसी भाषा के मुख्य चरित्र को पढ़ते हैं जो मुख्य धारा में पुरुषों को जानते हैं, और संस्कृत के साथ तो ये भी त्रासदी रही कि लोग ये केवल ये कालिदास, भवभूति इत्यादि का नाम जानते हैं, नहीं जानते कि संस्कृत के लेखन में महिलाओं का क्या अवदान रहा है। भारत की हमारी प्राचीन भाषा है। डॉक्टर भक्ति सुधा मुखोपाध्याय हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही रही, और उस समय जब रही हैं डॉक्टर भक्ति सुधा मुखोपाध्याय बहुत पहले। और दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जो है इनके विषय में बहुत कुछ नहीं मिलता, केवल 2 रचनाएं इन्होंने, एक बहुत थीसिस पे जिन्होंने इनकी जो थीसिस थी वो इंडियन कल्चर एज डिस्क्राइब इन मत्स्य पुराना, इंडियन कल्चर एज डिस्क्राइब इन मत्स्य पुराना 1958 में आपने शोध किया था। और हमारे यहाँ एक महिला महाविद्यालय नाम का जो है विद्यालय है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में ही, उसमें आप आचार्य थी। अनेक वर्षों तक आपने संस्कृत को पढ़ाया, और उस समय और जब रही आप उस समय महिलाओं का बाहर निकलना बहुत कम होता था। खास तौर पर विशेष रूप से काशी जैसे पारंपरिक स्थान पर तो महिलाओं का निकलना बिल्कुल नहीं था। ऐसे समय में, ऐसे जटिल समय में आप बाहर निकली और गुरुकुलों में जाकर के संस्कृत विद्या पढ़ी, और संस्कृत पढ़ करके छात्राओं को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया और उनको इस योग्य बनाया कि वो जो है क्या कहते हैं संस्कृत विद्या के क्षेत्र में और भारतीय संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में कुछ कार्य कर सके। अगला नाम जो हमारे सामने महिला लेखिकाओं, महिला रचनाकार का आता है, उनका नाम है डॉक्टर वेद कुमारी घई। डॉक्टर वेद कुमारी घई जी जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। 16 दिसंबर 1931 को जन्म हुआ, जम्मू के प्रताप मोहल्ला में हुआ, और आरंभिक शिक्षा जम्मू में। 1953 में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, परास्नातक की उपाधि, और इसके उपरांत काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से उन्होंने 1960 ईस्वी में पीएचडी की जो है उपाधि प्राप्त की। और न केवल संस्कृत में बल्कि प्राचीन भारतीय इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी इन्होंने एमए किया। और आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन जम्मू में आपकी जो है अध्यापन जो है वहीं से आरंभ किया, और इसके बाद पीजी डिपार्टमेंट संस्कृत विभाग जम्मू विश्वविद्यालय में आप अध्यापिका हो गई, जहां पर अध्यक्ष भी रही, संकाय प्रमुख अर्थात डीन भी वहां की हुई आप। और आपने विशेष रूप से पाणिनीय व्याकरण, जिसको पाणिनीयन ग्रामर आप कहते हैं, पाणिनीय व्याकरण और संस्कृत साहित्य का अध्यापन किया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज
में इन्होंने जो है लगभग जो है 66 से 67 और 78 से 80 अर्थात जो है लगभग 2-3 वर्षों तक आपने कोपेनहेगन विश्वविद्यालय डेनमार्क में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टडीज नाम का जो वहाँ उनका संस्था है, वहां पर वर्षों तक आप जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता के क्षेत्र में कार्य करती रहे। और इन्होंने 10 से अधिक पुस्तकें लिखी, संपादित किया। सबसे पहला जो इन्होंने संपादन किया नीलमत पुराण। जानकारी के लिए आपको हो कि नीलमत पुराण कश्मीर का एक पुराण है जो कश्मीर के विषय में विशेष रूप से परिचय देता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी और नीलमत पुराण वो ग्रंथ है जिसके विषय में ये कहा जाता है कि ये दोनों ये प्रमाणित करते हैं कि कश्मीर भारतीय संस्कृति सभ्यता का अखंड और एकमेवाद्वितीय केंद्र रहा है। पुरंधरी पंचकम, कश्मीर का संस्कृत साहित्य को योगदान जैसी पुस्तकें आपने लिखी हैं। और कश्मीर के एक कवि हुए थे शंभू का लिखा हुआ राजेंद्र कर्णपुर, इसका आपने हिंदी अनुवाद किया। और संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में लेखन करने के साथ साथ आपने अपनी मातृभाषा डोगरी, जम्मू की भाषा डोगरी में भी आपने काव्य लिखा है। डोगरी में नरेंद्र दर्पण नामक पुस्तक आपने लिखा। और पतंजलि का योग सूत्र जो ग्रंथ है, महर्षि पतंजलि जो योग के प्रवर्तक हैं, उस पर उन्होंने जो है क्या कहते हैं पातंजल योग सूत्र का डोगरी में अनुवाद किया है। डोगरी से डोगरी का शब्दकोश पे कार्य कर रही हैं। और गांधी सेवा सदन के संस्थापक कृष्ण मेहता जी के साथ आप खादी आंदोलन से जुड़ी। गांधी सेवा सदन और वसुधैव कुटुंबकम वेलफेयर सोसाइटी की सभापति, अमरनाथ साइन बोर्ड है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की सदस्य रही है। और भारत सरकार ने आपको बीच बीच में बहुत से महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिनमें पद्मश्री भारत सरकार, राष्ट्रपति पुरस्कार भारत सरकार का, सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर, स्वर्ण पदक जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, डोगरा रत्न अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इस तरह के पुरस्कार जो है आपने प्राप्त किए। इसी क्रम में बंगाल से एक नाम आता है डॉक्टर गौरी धर्मपाल। डॉक्टर गौरी धर्मपाल भी ब्रिटिश भारत की कवयित्री हैं। 1937 ईस्वी में आपका जन्म हुआ और आपकी शिक्षा वहां का एक प्रसिद्ध कॉलेज है स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जहां से आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और कलकत्ता विश्वविद्यालय से परास्नातक अर्थात एमए करने के लिए आपको ईशान छात्रवृत्ति मिली। और साओस एक संस्था है, स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, लंदन विश्वविद्यालय से आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, डॉक्टर गौरी धर्मपाल। और न केवल एक विधा में बल्कि बहुत सी विधाओं में इनकी रचनाएं हुई। ये उपन्यासकार, निबंधकार, लघु कथाकार, बाल साहित्यकार के रूप में विख्यात है। लेटी ब्रेबॉर्न कॉलेज में उन्होंने शिक्षण किया। और उमा देवी सूर्य, ये इनका तखल्लुस था, जिसको आप लोग पेन नेम कहते हैं। तखल्लुस यानी छद्म नाम, इसी नाम से ये कविता लिखती थी, गौरी धर्मपाल के नाम से नहीं बल्कि उमा देवी सूर्य के नाम से। और आपने बड़ी संख्या में जो है बाल गीत, बाल कविता, बाल कहानियां लिखी हैं। और मातृभाषा बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी में समान रूप से ये लेखन करती थी। बाल साहित्य में इंगले पिंगले, उपनिषदेर गल्पो, टाइगर फ्राई एंड अदर टेल्स इनकी जो है मुख्य रचना है। एक जो प्रसिद्ध किताब है जिसके लिए इनको बहुत प्रसिद्ध मिली, बांग्ला में है वेदेर कविता। वेदेर कविता अर्थात वेद की कविता, द पोएट्री ऑफ वेदास, ये है। और इन्होंने एक नई शैली को, बाल कथा में एक नई शैली को जन्म दिया। और नई शैली क्या थी कि ये पुराणों से, रामायण से, महाभारत से कथाएं चुनती थी और उसको बच्चों के मनोभावों के अनुसार परिवर्तित करके लेखन करती थी। इसलिए ज्यादा विख्यात हुई, लोकप्रिय हुई। इसके दो लाभ हुए। एक तो पुराणों की कथाएं, हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यताओं की कहानियां बच्चों तक पहुंचने लगी। जैसे आजकल बाल रामायण, बाल महाभारत, इस तरह की पुस्तकें आती हैं। तो ये उस समय तो था नहीं, इसको प्रारंभ करने वाली जो है डॉक्टर गौरी धर्मपाल जी थी। तो इससे दो लाभ हुए। एक तो बच्चों तक भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रचार हुआ, और दूसरा सरस रूप में जो है बहुत ही मनोरंजक रूप से बच्चों को जो है अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक किया गया। शिशु साहित्य संसद पुरस्कार 1985 में, शिरोमणि पुरस्कार 1985 में, विद्यासागर पुरस्कार, अरविंदो पुरस्कार, एमिनेंट टीचर अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा आपको जो है 1900 लगभग राष्ट्रपति भारत सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर का पुरस्कार जो है दिया गया। इसी क्रम में एक आधुनिक संस्कृत साहित्य में जो हमारे सामने कवयित्री आती है, उनका नाम डॉक्टर नलिनी शुक्ला। और 20वीं शताब्दी के
8वें-9वें दशक में अपनी काव्य प्रतिभा की ज्योति से संस्कृत साहित्य समाज को आलोकित किया इन्होंने। और नलिनी शुक्ला और जो ये अपना कवि नाम लिखती थी, व्यथिता व्यथिता यानी व्यथित हृदय वाली, व्यथित जो है, वो कानपुर में एक आचार्य नरेंद्र देव महाविद्यालय में ये संस्कृत की प्राध्यापिका रही। और आपका जन्म इटावा में 8 जून 1940 को हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि बड़ी सशक्त थी, पिताजी भी संस्कृत के विद्वान थे। और 8 जून 1940 को पंडित इंद्रदत्त और माता पद्मावती, इन्होंने गीति काव्य यानी लिरिकल पोएट्री, लघु काव्य, शॉर्ट पोएट्री और नाटक यानी ड्रामा, इन तीनों विधाओं में अपनी लेखनी जो है चलाई है। और संस्कृत कवयित्री के रूप में इन्होंने जो है बहुत जो है ख्याति अर्जित की। तो इनका एक पहला जो काव्य है वो है प्रकीर्णम, 100 श्लोकों का एक शतक काव्य। शतक काव्य उसे कहते हैं, इसमें 100 श्लोक होते हैं। 1976 में जिसका प्रकाशन हुआ है। और एक अनुष्टुप छंद के माध्यम से, अनुष्टुप छंद एक विधा है, उसके माध्यम से इन्होंने अपनी मनोव्यथा को जो है व्यक्त किया है। एक काव्य संग्रह इनका भावांजलि नाम से 1977 में प्रकाशित हुआ। और यह भावमयी रचना भक्तिमय स्तोत्र काव्य, इसमें स्तोत्र हैं, देवताओं की स्तुतियां हैं। इसमें कुल 21 स्तोत्र हैं और बहुत है। इसके अलावा 1981 में इन्होंने वाणी शतकम नाम से एक रचना प्रारंभ हुई, जिसमें 100 श्लोकों में भगवती सरस्वती की वंदना की गई है, सरस्वती जी की स्तुति की गई है। जिसका एक श्लोक मैं आपको सुनाना चाहूंगा। रविस्तम कामाख्या प्रकट मुख बिंदु समरसात स्तनद्वैत व्यक्ता हिमकर्ण वहन्यात्मक वपु त्रिबिंदूनां तत्त्वं कलयति च हार्दामपि कलाम जनौ सुदिव्येते जननि रमते धाम्नि सुचिरम। दार्शनिक जो है श्लोक है, ये पूरा दार्शनिक श्लोक साहित्य के साथ दर्शन को भी पिरो दिया है। और इनकी विशेषता थी कि दर्शन जैसे जटिल विषय को काव्य जैसी रसमयी जो है पद्धति में पिरो देती थी। दर्शन को जब काव्य में पिरो दिया जाता है तो उसके सौंदर्य का कहना ही क्या है। इसी क्रम में एक नाम जो हमारे समक्ष आता है वो है डॉक्टर पुष्पा दीक्षित। तो डॉक्टर पुष्पा दीक्षित एक बहुत बड़ा नाम है जो अभी भी वर्तमान समय में है। बीबीसी हिंदी लंदन ने जो है, बीबीसी की लंदन की हिंदी सेवा ने इनके ऊपर बहुत से सूचनाएं निकाली, बहुत सी जो है समाचार प्रकाशित किए और इनके ऊपर लेख भी प्रकाशित किए कि क्या पुष्पा संस्कृत में सपने देखती हैं। ऐसी लेखिका, ऐसी विदुषी जो आज भी, जिनको सपने भी संस्कृत में दिखाई देते हैं। आज भी बिलासपुर में इनका संस्कृत गृहम नाम से घर है और देश विदेश से संस्कृत सीखने वाले लोग इनके यहाँ जाते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले। और भोजन की भी व्यवस्था वहीं रहती है। और ये काम करते हुए, अपने घर का काम करते हुए बच्चे बच्चियों को संस्कृत सिखाती हैं। रसोई में रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए ये बच्चों को पढ़ाती हैं उसी समय। और उसके बाद जब बैठती हैं तब पढ़ाती हैं, मतलब काम करते हुए पढ़ाना। तो उसमें उसके माध्यम से बच्चे देश विदेश तक संस्कृत सीखते हैं। और विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण की ये आचार्या हैं। हालांकि कवयित्री भी हैं, कविता भी इन्होंने लिखी है। इनकी कविता जो है अग्निशिखा के नाम से प्रसिद्ध है, काव्य संग्रह। बहुत सुंदर सुंदर संस्कृत की कविताएं हैं। और 1 जुलाई 1942 को जबलपुर मध्य प्रदेश में इनके जो है व्याकरण, आयुर्वेद एवं साहित्य के पंडित सुंदरलाल शुक्ल के घर इनका जन्म हुआ, जानकी देवी के घर। और इन्होंने अपने गुरु विश्वनाथ त्रिपाठी से व्याकरण का अध्ययन किया। राम यत्न शुक्ल, आचार्य बच्चूलाल अवस्थी, आचार्य डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जैसे विद्वानों से इन्होंने संस्कृत सीखा और पढ़ा। एमए पीएचडी की उपाधि आपने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से प्राप्त की। 39 वर्षों तक अध्यापन किया बिलासपुर में। और लगभग अष्टाध्यायी, पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी से लेकर के जल्दी सिखा देने वाले व्याकरण, शीघ्र बोध व्याकरण तक इन्होंने लगभग जो है 2 दर्जन से अधिक व्याकरण की पुस्तकें लिखी। इसके अतिरिक्त एक पुस्तक इन्होंने व्याकरण सिखाने के लिए लिखी जो 13 भागों में है। इसके अतिरिक्त एक तिगंत कोश नाम का पुस्तक डिक्शनरी है, धातु कोशों की 3 भागों में, कृदंत कोश 2 भागों में। और बहुत इन्होंने पुस्तकें प्रकाशित की। लेकिन इन्होंने कुछ कविताएं भी, काव्य ग्रंथ भी लिखे। एक महाकाव्य लिखा इन्होंने, अपराजित वधु महाकाव्य, अग्निशिखा गीति काव्य, शांभवी नाम से गीति काव्य। तो अग्निशिखा 1984 में प्रकाशित हुई है।
और दूरबा नाम की एक पत्रिका निकलती थी जिसपे समय समय पर डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी की कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। आज भी आप अपने संस्कृत गृहम नाम के घर में बहुत ही मनोभाव से संस्कृत पढ़ा रही हैं। और पंडिता लीला राव, बहुत सबसे पहले हमने पंडिता क्षमा राव का नाम लिया था, जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिनका योगदान रहा। तो पंडिता क्षमा राव की सुपुत्री हैं ये लीला राव जी। 1950 में के 6वें 7वें दशक में 1 दर्जन से अधिक रचनाएं रची, प्रायः नाटक लिखे इन्होंने संस्कृत में, और समसामयिक विषय को लेकर के, जैसे बाल विधवा एक बहुत चर्चित रहा। उस समय की विधवा प्रथा की जो कुप्रथा थी हमारे देश में, उसको लेकर के इन्होंने लिखा है। माया जाल, तुलाचलाधिरोहण, कुमायूनिया, जयंत कुमाऊनिया, होलिकोत्सव, होली पे लेकर के, कुछ एक को छोड़ करके सामाजिक कुरीतियों को लेकर के इनकी अधिकांश संस्कृत रचनाएं हैं पंडिता लीला राव की। अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने तत्कालीन सामाजिक कुरीति, जैसे विधवा का विवाह न होना, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, ये सब प्रथाओं पर जो है क्या कहते हैं, इन्होंने अपने कठोर प्रहार किए हैं पंडिता लीला राव। इसी क्रम में एक नाम प्रोफेसर कमला पांडे जी का आता है, जो काशी की प्रख्यात कवयित्री हैं, और इनका तो बहुत कविता लिखी है संस्कृत की। काशी में एक बड़ा नाम है ये, और जीवन भर अविवाहित रही, और विवाहित रह करके इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक महिला कॉलेज है, बसंत कन्या महाविद्यालय, वहां इन्होंने जो है अध्यापन किया। वर्षों तक इनके अध्यापन का अवसर रहा। विशेष रूप से दर्शन की विदुषी रही है, लेकिन इन्होंने काव्य के क्षेत्र में गंगा दंडकम, दंडक छंद और छंद और संस्कृत गायन वादन में आप बहुत ही विख्यात हैं। और रक्षत गंगाम, भगवान शंकराचार्य, ये सब इनके महा का धरा कंपते, उत्तराखंड की मूलतः रहने वाली, इसलिए प्रकृति को लेकर इनके मन में बहुत प्रेम है। विशेष रूप से गंगा शुद्धि और गंगा प्रदूषण इनके जो है केंद्रीय विषय रहे हैं, जिसको लेकर के ये बहुत ही कार्य करती रहती है, आज भी निरंतर जो है सक्रिय है। इसी क्रम में डॉक्टर मंजुलता शर्मा, प्रोफेसर मनुलता शर्मा और नलिनी शुक्ला इत्यादि ये नाम जो है हमारे सामने आते हैं, जो संस्कृत कविता के क्षेत्र में कवयित्रियों के रूप में बहुत ही विख्यात हैं। आज भी लेखन कर रही हैं, लिख पढ़ रही हैं, और विशेष रूप से जो है नारी विमर्श को लेकर के भी ये स्त्रियां लिख रही हैं और अपनी उपस्थिति दिखा रही है। संख्या कम है, बहुत न्यून है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, संतोष का विषय है कि स्त्रियों की भागीदारिता निरंतर ही बढ़ती जा रही है, और ये अपने क्षेत्र में सक्रिय है, और विशेष रूप से कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र, कविता काव्य के क्षेत्र में। और कविता काव्य को इन्होंने एक माध्यम बनाया है, जिस माध्यम से ये सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार करती हुई दृष्टिगत हो रही है। इतना ही आज के व्याख्यान में पर्याप्त है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हम आपके बहुमूल्य समय और अमूल्य विचार के कृतज्ञ हैं। हर बार मुसीबत के मुंह के आगे अपने आत्मविश्वास को परोसा कर, जीतेगा तू ही, बस खुद पर भरोसा कर। Interrogation helps evolve our insight and is a catalyst for cognition. So now the floor is open for question and answers. If anyone has any question, you can send it to us. We'll ask the speaker to address your question. बादल है बिखरा सा सूरज की बाहों में, खेल है ये जीवन सारा शतरंज के खिलाड़ी जैसा। So now we have a fun activity for you all.
Now we will have a fun activity where you all will be given with some quotes by some famous classical Indian poets and you will have to guess the poet. So here is the first quote. Clouds come floating into my life no longer to carry rain or usher storm, but to add color to my sunset sky. Can you guess the poet? So the correct answer is Rabindranath Tagore. He hasn't just given us history, he has given us songs to sing forever. So the next quote is awake, arise, and educate. Smash traditions, liberate. So the hint is she's a famous Maharashtrian poet. She has also emphasized on educating girls. Any guesses? Anyone? So the correct answer is Savitri Bai Phule. A country's greatness lies in its undying ideals of love and sacrifice that inspire the mothers of the race. This one is very easy. If I give you the hint, you'll be able to guess it. So she's the Nightingale of India. So the correct answer is Sarojini Naidu. Today, well lived makes every yesterday a dream of happiness. The correct answer is Kalidas. Moving on, so now I invite Professor Dr. Satyendra Kumar Mishra. He has completed his graduation from Allahabad University and his post-graduation from Purvanchal University. He was awarded the Best Faculty Award by Amity University, Lucknow campus on 5th September 2018 for the session 17-18. I request Sir to give the vote of thanks. Thank you. I extend my heartiest thanks to Honorable Director of ASL, Professor Dr. Kumkumri Ma'am, for her constant guidance and support. My special thanks to the Speaker of the Day, Dr. Rajesh Sarkar, for joining us despite his busy schedule. We all feel blessed by your stimulating session, sir. I am sure that the faculty as well as the students were all enriched by this session. My sincere thanks to Ms. Shraddha Srivastava for successful organizing of this FDP. I appreciate the team, Vidhi Chauhan, Tripti Pandey, and the technical expert, Ms. Saraswati Prakash, for holding this session effectively. I am very much thankful to the audience for their presence throughout. Please have a wonderful day ahead. Thank you. I now request everyone to please switch on their cameras so that the technical team can take up the screenshots and we can cherish this moment forever. I also request you to kindly fill up the feedback form sent you on your WhatsApp and join us again tomorrow at the same time for the 7th session.
And tomorrow the session will start at 3 o'clock. And tomorrow the speaker is Dr. Sonu Saini. Thank you, everyone. Now I'm going to close the meeting. Thank you.